बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ शो में हस्ब मामूल। मेरा साथ देने के लिए मौजूद है दुनिया कॉमेडी का बहुत प्यारा नाम नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, दर्द सर का हो या जोड़ों का हो या कमर का, ज़िंदगी को मुश्किल नहीं अजाब बना देता है। लेकिन खुशकिस्मती से आज हमारे साथ मौजूद है वो स्पेशलिस्ट जो दर्द को कहती हैं अलविदा और मरीज़ को पहुंचाती हैं शिफा, पेन मैनेजमेंट की माहिर, पाकिस्तान की मारूफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर तहजीब ज़हरा। अच्छा नाज़रीन, डॉक्टर साहबा की तरफ हम बाद में आते हैं, पहले लिए चलते हैं आपको अपने स्किट बोर्ड की तरफ और दिखाते हैं आपको कि सीसीडी की पंजाब में एंट्री के बाद जराइम पेशा लोगों का क्या हाल है। एक छोटी सी झलक। चल भी शहजादा उठ जा, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਛੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ? ਬੇਵਾ ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ ਯਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਆਂ? ਦੇਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਸਲੀ ਸੋਨਾ। ਤੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਪਿੱਤਲ ਦਾ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ? ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਤਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੱਤਲ ਸੋਨਾ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਿਕਅਪ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਡਾਲਿਆ ਕੋ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਡਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਆਓ, ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਟਾਂਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ भाई कितनी की देर पई है, पुलिसा ना आ जान जल्दी नाल मेरा हुलिया ठीक कर दे। ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਲੀਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ, ਇੱਕ ਲੱਕ ਤੇ ਬੰਨੀ ਨਾਲ, ਓਏ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ? नहीं ऐ ते मैं लोगां दे डक्के खोलण वास्ते लाया है, इंज करके नाली दे विच फैर मारना, डक्का अग्गा निकल जांदा है। ਇਹ ਤਾਂ 2025 ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਹੁਣ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਐਦੋਂ ਜੇ ਕੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੋਸਟ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ SHO ਅਸ਼ਫਾਕ ਚਦਰ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ SHO ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹਾ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਕਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 3 ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਵਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਉਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੇਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾਈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਲਵਾਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇਆ ਪੇਟੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਾ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਬਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਾਲੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਫਟੀਆਂ ਖੇਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਮਾਰਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ, ਆਜੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ 2 ਬੰਦੇ ਭੁਗਤਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟੌਕ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਵੇਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਲਾਹ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਫਾਰ ਯੂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ 50 ਤੋਬਾਂ ਉਹ ਕਰ। ਇੱਥੇ CCD कैमरे। भाई CCD नहीं, CCTV कैमरे होते हैं। अच्छा जी, करा? हाँ कर। ਭਾਜਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸਾਲੀ ਲਾਂਡੂਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਣਾ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਸਾਲੀ ਲਾਂਡੂਆਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਹਜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕ ਲਿਆ ਦਾਂ। ਪਿਸਤੌਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰਾਇਰ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਇਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਲੋਰ ਹਵਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਲੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੂ ਜੀ ਸੋਧੀਏ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਡਰ ਲੱਗ ਵੀ ਸੋਧੀਆ ਦਾ
ਇਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਹਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਡਰਾਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਫਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਇਰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਅੱਬੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਹਮਾਮ ਵੇਚ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਡਰਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਰੱਖ। ਓ ਯਾਰ ਪਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੇ, ਤੇਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੈਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਠੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਐਂ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਲੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ। भाई हले होर कितना टाइम लगसी, मैं जाके बेवा औरतें सिलाई मशीनां तकसीम करनी है। ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਅਥਰੀ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ? अथरी कुड़ी नहीं भाई, वखरी कुड़ी। ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਵੱਖਰੀ ਕੁੜੀ। ਹੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਨਿਖਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? मैं निकर पेडिक्योर कराना आई हां। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਡੀਕਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਪੈਰ ਲੱਗਣ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗਿੱਠੇ ਮੈਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਭਲਵਾਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। भाई गल सुन वे, ओ सीसीडी वाले मेरे घर छापे मारे, मेरे 8 बॉडीगार्ड धार लेने, जब्दी मेरा काम करा। मैं कोई हुलिया मेरा ठीक लगदा पे ना ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬਚਣਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸਨ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। या अल्लाह माफ करे मेरे मौला। भाई मुझे भी जल्दी से इनोसेंट से लड़की बना दे। ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਟੈਂਟ ਤੇਰਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। नहीं मैंने तो कोई बदमाशी नहीं की, बदमाशी तो लड़के करते हैं। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਈ ਦੇ ਝੁਗੇ। या अल्लाह खैर, या अल्लाह माफ करे। भाई जी जुमे वाली टोपियां किराए ते नहीं मिलदी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੋਪੀ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਉੱਧਰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਧਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਗਲੌਕ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਮਝੋ, ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। मैं छोड़ चुका हूँ सारी बदमाशी। नहीं तुम नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे सर पर तो मैं पूरे खानदान को तड़ियां लगा बैठी हूँ। अब तुमने मेरे चाचू से मेरे जमीन का हिस्सा लेकर देना था। नहीं अब नहीं अब दुआ कर। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਖਾ ਸਕਦਾ। बिस्मिल्लाह, तुसी भी नवे नवे मुसलमान होए। सलाम अलैकुम। ਵਾਲੇकुम ਸਲਾਮ। भाई की हाल भाई, ठीक ठाक हो? टोपी अपनी लेके आए, मैं बड़ी मुश्किल नाल लई। ए क्यों वेख रहे मेरे? ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अच्छा वाकई वेख इंज रहे जिवें आखिरी बार वेख रहे मैनू। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਭਗਾਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਰੀ ਜਰਾ ਗਲੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਕੱਢ ਲਓ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਗਾ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਵੇਖ। ਤੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਗਣਾ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਸੌਣਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਣੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਜੇ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਾ ਗਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਾਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਾਰ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਵੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਸੇਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਮਾਰੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੋੜੀ ਗੂਰੀ ਘਟਾ ਇਹਨੂੰ। ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਪਏ? ਨਵੇਂ ਡੇਲੇ ਪਵਾ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਓ ਚੋਬਰ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਝੂਠੇਗਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜੇ ਪੁੱਠੂ ਲਾਲਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ। ਥੋੜੀ ਗੂਰੀ ਘਟਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ 버ਗਰ ਮੰਗਾ ਦਾਂ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਅਮੀ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਈ ਜਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗਾ,
ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਆ ਡਰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਗਰ ਏਡਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ ਬਸ। ਘੱਗਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਜਿਹੜੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਘੱਗਰਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ। आप ना पहले हमारा काम कर दे, हम बहुत लेट हो रहे हैं, हमें जाना है। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਸਮੈਕ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। भाई जितने आपने पैसे इनकी कटिंग करने के लिए है ना, उतने मैं आपकी इनकी कटिंग नहीं करने की दूंगी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ CCD ਚ ਦਾਇਰ ਕਰਾ। ਕੂਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜਦਾਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਈ ਵੀ ਮਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। ਵੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ CCD ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਆ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ। ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਕੌਣ? ਇਹ CCD ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਖ ਵੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਵੇ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖ ਵਾਲਿਆ, मेरी आंखें हैं आपकी आंखें। खंजर है तेरी आंख, तलवार तेरी आंख। ਨਹੀਂ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੂੰ ਕਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ ਆਂਖੇ। ਕਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ ਸਾਰੇ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि हम बेचारे पाकिस्तानियों की और ख़ास तौर पर शौहरों की सारी ज़िंदगी कुछ ना कुछ मैनेज करते ही गुजर जाती है। ख़र्चे ज़्यादा हैं, तनख्वाह थोड़ी है, पैसे मैनेज करने हैं, जगह थोड़ी है, मेहमान ज़्यादा आ गए हैं, जगह मैनेज करनी है, फिर खाना कम पड़ गया है, खाने वाले ज़्यादा हैं, खाना मैनेज करना है। ये पेन मैनेजमेंट भी आ गई कि जी पेन, देखिए सवाल तो ज़हन में पैदा होता है ना कि या तो पेन का इलाज किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, या बर्दाश्त की जाती है। पेन को मैनेज कैसे किया जाता है? बेसिकली पेन मैनेजमेंट ये एक आज इसकी जो तारीख़ है वो तो इतनी ही पुरानी है जितनी इंसानियत की तारीख़ है, क्योंकि एक ऐसी हिस्स है, एक कदीमी हिस्स है जो इंसान शुरू रोज़ अव्वल से महसूस करता चला आ रहा है। बल्कि अगर हम ये कहें कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेड इसकी तारीख़ है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 1500 साल कबल पेन मेडिसिन तब से चली आ रही है, और इसका बाकायदा आगाज़ 1960 की दहाई में हुआ, जब पहली दफ़ा पेन को डिफ़ाइन किया गया कि ये एक नाखुशगवार ज़हनी और जिस्मानी कैफियत का नाम है। बिल्कुल। और इतने 60-65 साल हो गए तब से लेके अब तक पेन मेडिसिन की फ़ील्ड तरक्की करती चली जा रही है, जदीद तहकीक हो रही है। पहले पेन मेडिसिन मुतारिफ़ हुई जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ अद्वियात दी जाती थी पेन का इलाज के लिए, लेकिन जिस तरह वक्त गुज़रता गया, जदीद तहकीक होती रही, अब हम पेन मेडिसिन से इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट की तरफ चले गए हैं, जिसमें जहाँ पे दर्द होगा उस दर्द उठने वाली जगह पे हम इंजेक्शन के ज़रिए दवाई डाल देंगे और उससे मरीज़ को आराम मिलेगा। ये जो डॉक्टर साहब मुख्तलिफ आ गए हैं, ऑक्यूपंक्चर आ गया है और मुख्तलिफ टेक्निक्स आ गई हैं, ये भी हेल्पफुल होती हैं? आप इनको एज क्वालिफाइड पेन मैनेजमेंट आप मानती हैं, तस्लीम करती हैं, सारी चीज़ें काम दिखाती हैं? जी बिल्कुल। ये कायरो प्रैक्टिशनर है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, जो भी सर्टिफाइड है, क्वालिफाइड है और प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज़ गुड। एक्वापंचर क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। एक्वापंचर बहुत अच्छी फील्ड है, कायरोप्रैक्टर्स बहुत काबिल होते हैं, और इसी तरह जो पेन मैनेजमेंट है वो सेपरेट है, लेकिन है सारे ही ये कमोबेश एक जैसी ही चीज़ें चली आ रही है। और अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे जो बड़ा इस वक्त मसला है पेन मैनेजमेंट में, जो मुझ जैसे कम इल्म के जहन में आता है कि जी सबसे जो बड़ी चीज़ जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि पेन किलर्स नहीं लेने, तो क्योंकि गुर्दे तबाह हो जाएंगे। तो ज़रा मोटे मोटे और देसी ज़रा अंदाज में बताएं कि कौन सी अद्वियात हैं जो पेन किलिंग के लिए ले लेनी चाहिए और कौन सी हैं जिनसे ज़रा अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी हैं जिनको बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए? होता ये है कि हमारे पास मरीज़ तब आता है जब वो पहले तो सेल्फ मेडिकेशन करता है, दवाई की दुकान पे जाएगा, उसे कहेगा कि जी मेरे दर्द हो रहा है, उसको वो दवाई दे देगा। उसके बाद वो क्वैक्स के पास जाएगा। हमारे पास तो वो तब आता है जब उसका हशर नशर हो चुका होता है और उसके सबसे ज़्यादा गुर्दे, जिगर और मैदे पे असर हो चुका होता है।
कुछ दवाइयाँ जैसे डाइक्लोफेनिक हो गया, उनका बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के इस्तेमाल जो है मरीज़ के गुर्दे ख़त्म कर देता है। और जब वो हमारे और स्टीरॉइड्स, क्वैक्स जो हैं या जो अनक्वालिफाइड जीपीज़ हैं जिनको इसके बारे में नहीं इल्म, वो स्टीरॉइड्स लगा लगा के आपके जोड़ को फारिग कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्वालिफाइड लोगों के पास आया जाए जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको दवाई दें और जितनी ज़रूरी है जब ज़रूरी है तब वो प्रिस्क्राइब करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ख़वातीन में जोड़ों के दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, पट्ठों का दर्द रहता है, थकन में रहती है, बेजार रहती हैं शोरों से दर्द से। तो जोड़ों का दर्द उन्होंने कहते हैं जोड़े जोड़े होते हैं। तो इस बारे में आप क्या एडवाइस करेंगी? एक तो वैसे ही वो सिनफ़ नाज़ुक है, दूसरा बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो ख़वातीन में निस्बतन ज़्यादा और जल्दी होती हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह हमारा लाइफ़स्टाइल है। सही। ख़वातीन की एक तो जो डेली लाइफ़स्टाइल है वो ऑड होती है कि एक तो उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो नहीं देनी होती, ना वो अपनी वज़न का ख़्याल रखती हैं, ना अपनी डाइट का ख़्याल रखती हैं, ना रेस्ट उनको प्रॉपर मिलता है, ना उनको खुराक भी उनकी जो होती है वो उस तरह की नहीं होती कि प्रॉपर अपने लिए बैठ के सारा फोकस मेकअप पे होता है। उनका प्रॉपर ये नहीं होता कि वो खुद भी बैठ के एहतमाम से खाएंगी, बच्चों के और शोहर के और ससुराल वालों के उसमें लगी रहती हैं, तो वो उनकी डाइट अफेक्ट होती है। इस वजह से ये होता है कि और अपने आप को टाइम नहीं दे पाती, जिसके बायस वो अक्सर हर जो है ना थकी हुई रहेंगी, उनके जिस्म में दर्द रहेगा, बेजार रहेंगी, ब्रेन फॉगिंग का शिकार रहेंगी, उनका आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है। ये सारा मिला के इसको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम या फाइब्रोमाइल्जिया कह सकते हैं, जिसके अंदर आर्थराइटिस भी आ जाएगा, पट्ठों का दर्द भी होगा। तो ये ख़वातीन में ज़्यादा इसीलिए इन्हीं वजूहात के बिना पे पाया जाता है और इसको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज कोई आसान पेन मैनेजमेंट के एक डॉक्टर की हैसियत से आप जी, बताएंगे? पेन मैनेजमेंट में इसका एक तो इलाज ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं कि वो अपना जो है रोज़मर्रा की अपनी रूटीन ठीक करें, डाइट दें, फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेज ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हम उनके अगर टेंडर पॉइंट्स बने हुए हैं, टेंडर पॉइंट्स होते हैं कि जिस्म में जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं उनके जो दर्द करती हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो जब नीडल्स लगाते हैं तो वो उन्हीं पॉइंट्स पे गालबन टच करते हैं जी needles जी को। जी, वो आम फहम ज़बान में हम ये कहेंगे कि वो जब नीडल डाली जाती है तो वो टेंडर पॉइंट्स जो पट्ठों की गांठें बनी हुई होती है वो खुल जाती उनको हैं, तोड़ते हैं। उनको तोड़ा जाता है, वो खुल जाती हैं। तो ये टेंडर पॉइंट्स उनके एड्रेस किए जाते हैं। इसके अलावा अगर उनके जॉइंट का प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिकेशन दी जाती है। अगर कोई जोड़ ज़्यादा पुराना या ख़राब होता चला जा रहा है तो उसके हिसाब से जो अगर फॉर एग्जांपल घुटने का जोड़ है तो जो उसकी ग्रेडिंग होएगी, उसके घुटने की ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी, उसके हिसाब से उसको एड्रेस किया जाएगा। पहली 3 ग्रेड्स में हम उसको मेडिसिन या जेल सप्लीमेंट्स दे सकते हैं जिसमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट या ग्लूकोजामीन हो गया, और पीआरपी किया जा सकता है पेशेंट का। और अगर आखिरी स्टेजेस हैं, 4th स्टेज पे चला गया, फिर हम वो हमारे नहीं रहता, फिर वो सर्जन की बात हो जाती है, फिर वो नी रिप्लेसमेंट तक चला अच्छा जाता है। डॉक्टर साहब, आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी हैं जी जी। बेसिकली, तो वही यानी बेहोश भी करती हैं। तो ये बेहोशी की अद्वियात और पेन किलर्स, दर्द कम करने वाली अद्वियात, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? जब हम मरीज़ को बेहोश करते हैं तो उसमें बेहोशी का एक एलिमेंट है कि मरीज़ को दर्द महसूस ना हो ऑपरेशन के हाँ दौरान, तो इसलिए हम पेन की मेडिसिन उसको देते हैं। एक तो ये होती है मुकम्मल बेहोशी में। इसके अलावा एक होता है जिस्म का किसी ख़ास हिस्से को सुन कर देना, इसमें हम पेन की अद्वियात देते हैं ताकि मरीज़ के वो जगह सुन भी हो जाए, और वही अद्वियात जो हैं वो हम पेन मैनेजमेंट में इस्तेमाल। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आप ज़्यादातर अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं वो अहमद हेल्थ केयर हॉस्पिटल में सर अंजाम दे रही हैं, तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरीज़ की जाती हैं उनमें आप एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के तौर पे भी काम करती हैं और फिर पेन मैनेजमेंट भी आप वहाँ पे देख रही हैं? मैं वहाँ पेन मैनेजमेंट देख। वहाँ पे आप सिर्फ पेन जी, मैं मैनेजमेंट सिर्फ देखती पेन हैं? मैनेजमेंट। अच्छा अच्छा। तो आप हमें ये बताएं कि अहमद हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल है उसमें पेन मैनेजमेंट की क्या फैसिलिटीज़ हैं? अहमद हेल्थ केयर में बेसिकली पेन मैनेजमेंट के हवाले से बहुत अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है वहाँ पे। एक तो हमारा पेन का ओपीडी होता है, सही। दूसरा हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद होते हैं ताकि हम एज अ टीम काम करें। हम जो उनको मेडिसिन एडवाइस कर रहे हैं उसके साथ साथ उनको एक्सरसाइजेज भी एडवाइस हों। वेरी गुड। इसके अलावा हम जो वहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं उसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर्स भी होते हैं और फ्लोरोस्कोपिक, हमारा पूरा ऑपरेशन थिएटर है जिसमें हम
फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड प्रोसीजर्स भी करते हैं। जो पेशेंट को हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ब्लॉक लगा सकते हैं उनको अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिनको नहीं, जिनको फ्लोरोस्कोपी या एक्सरे की जो मशीन होती है उसके साथ ज़रूरत हो हम उनको थिएटर में शिफ्ट करके वहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास वहाँ पे वेलनेस थेरेपीज़ भी होती हैं। पेशेंट्स को जो लॉन्जेविटी मेडिसिन है उसमें हम पेशेंट्स को आईवी वेलनेस थेरेपी, आईवी न्यूट्रिशन थेरेपीज़, मूड बूस्टर्स, मूड स्टेबलाइजर्स, अच्छा। ये चीज़ें भी करते हैं। नैड प्लस हो गया, ये सारी चीज़ें भी होती हैं वहाँ पे। डॉक्टर साहब, आप ख़वातीन के अमराज की बात कर रहे हैं, दर्दों की ख़ास जी, तौर जी। पे आपके पास तमाम दर्दों का इलाज मौजूद होगा, लेकिन क्या आपके पास ख़वातीन के उस दर्द का इलाज है जो शौहर के घर वापस पलटने से 5 मिनट पहले होता है और वो सर बांध के बैठ जाती है? जिसको कहते हैं दर्द डिस्को। उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है हमदर्दी। इनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है क्योंकि वो खुद औरत है। उसका इलाज है हमदर्दी, 4 मोहब्बत के बोल, थोड़ा प्यार का इजहार कर दें आप, ठीक हो जाएगी। बल्कि इसी हवाले से मेरा आज का सुहाना का सवाल भी है। सवाल ये है, 4 ऑप्शन है, एक आपने सेलेक्ट करनी है। अगर एक शौहर आकर कहे मैं ऑफिस से आता हूँ, मेरी बीवी सर पर दुपट्टा बांध के चीख रही होती है, हाय दर्द से मर गई, इस दर्द को कैसे मैनेज किया जाए? सवाल ये है शौहरों की जाने और रो के कहनिया वे अपने प्यो ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ मैं मर चली, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਸਿਰ 'ਚ। ऑप्शन नंबर 1, ये कहेंगी तुम 2 दुपट्टे बांधकर सामने बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ये मशवरा देंगी ऑफिस जाने से पहले बीवी के सारे दुपट्टे छुपा कर जाया करो। ऑप्शन नंबर 3, बीवी से कहेंगे खुले बालों के साथ तुम अपनी छोटी बहन से भी 10 साल छोटी लगती हो। ऑप्शन नंबर 4, घर आते ही खुशखबरी सुनाएंगे चलो शॉपिंग के लिए जाएं, बाजार में सर दर्द खत्म वाले दुपट्टे भी आए हुए हैं। आखिरी 2 बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर 3। अपनी बहन से भी छोटी लगती हो। ज्यादा अच्छी है। ये तो फिर देख के कभी अगले 10 साल ही सर दर्द होने। नाज़रीन, डॉक्टर साहब की बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन मजबूरी है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और दर्द जो है अब हर तीसरे चौथे बंदे को वो लाहक नजर आती है, वो माइग्रेन है। जी जी। क्या इसका फिनोमेना है और इसका इलाज यही है कि सर दर्द की गोली खा ली जाए या माइग्रेन की जो मेडिसिन हैं वो खा ली जाए? देखिए, माइग्रेन जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो इनहेरिटरी होता है, बाज़ लोगों के जीन्स में होता है कि उनको माइग्रेन होगा। दूसरा, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर आप इनको स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें से 60 to 70% जिनको माइग्रेन होता है या तो वो नाश्ता नहीं करते, या वो डिहाइड्रेटेड रहते हैं, पानी की कमी होती है उनको, या बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में रहते हैं वो, या फिर वो प्रॉपर लाइट यूज़ नहीं करते पढ़ते हुए या कोई काम करते हुए, या फिर उनकी आई साइट वीक होती है, वो ग्लासेस यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। या स्ट्रेस, नींद पूरी नहीं होती, ये बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी से माइग्रेन होता है। इसके लिए जो मेडिसिन ली जाती हैं वो अगर लंबे अरसे तक ले ली जाएं तो वो सेफ है? जी, उसमें 2 तरह से इलाज होता है। एक तो ये होता है कि हमने एक्यूट जब पेन हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट है। दूसरा एक होता है कि प्रोफाइलैक्टिकली हमने क्या करना है कि मरीज़ को आगे अटैक्स ना हो या कम से कम हो। तो वो जो मेडिसिन हम प्रोफाइलैक्सिस के लिए देते हैं वो सेफ़ भी होती हैं अगर विद इन द सेफेस्ट डोज दी जाए। इसके अलावा हम ब्लॉक्स लगा देते हैं। अब तो इतनी जदीद तरक्की हो गई कि हम माइग्रेन के लिए ब्लॉक्स लगाते हैं, इधर सर के पीछे ब्लॉक्स लग जाते हैं। बोटॉक्स की वो आ गया है कि बोटॉक्स लगा दिया जाता है माइग्रेन के लिए। तो अब बड़ी जदीद इसमें इंटरवेंशन हम यूँ कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अब दौरे जदीद के तोहफे हैं, इन्होंने हमारी दर्दों में कैसे इजाफा किया? दौरे जदीद का जो सबसे बड़ा तोहफ़ा है, जिसने आजकल जो यंग जनरेशन बहुत इससे मुतासर हो रही है, वो आपका मोबाइल है। और ख़ास तौर पे अब हमारे पास बच्चे आते हैं। पहले तो ये बहाना था जी बच्चों के बैग बहुत भारी हैं इसलिए उनकी कमर में दर्द होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जब बच्चा किसी चीज़ को पकड़ना ही शुरू करता है, 6 से 9 महीने का होता है, तब से उसके हाथ में मोबाइल होता है और वो मुसलसल उसका सर ऐसे होता है और उसको इससे दुनिया से कोई सरोकार नहीं होता। आप सुन के हैरान होंगे कि हमारा एक तो सर का अपना वज़न होता है जो गर्दन के मोरों के ऊपर रखा हुआ होता है। इसके अलावा आपका जो वेट बढ़ रहा होता है मोबाइल से, अगर आपने 0 डिग्रीज में मोबाइल यूँ सामने रखा हुआ है तो आपका जो वेट है मोरों के ऊपर, ये 5 किलो का वज़न है।
आपने 15 डिग्री किया तो ये 10 किलो हो गया। अच्छा। आपने 30 डिग्री किया तो ये 20 किलो हो गया। और जो मुसलसल यूं करके अपना सर रखते हैं उनकी गर्दन पे हर वक्त 25 किलो का वजन होता और माँ बाप समझ रहे होते हैं कि बच्चा को वजीफा कर रहे हैं। है। जी बिल्कुल। माँ बच्चा देखो 2 किलो 2 दिन ही लेके आंदा हाँ। 20 किलो चुकी फिरदा। हाँ तो छोटे छोटे बच्चे लेके किस तरह मोबाइल बैठे होते हैं। ये अब आप देख लें, फिर अंदाजा लगाएं कि इतना वजन अगर आपकी गर्दन के साथ बंधा हुआ और होगा नाजुक मोरे। नाजुक मोरे। और बच्चों की कुब निकलना शुरू हो गई है, बच्चों की बैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, आई साइड प्रॉब्लम्स हो गई हैं, और बच्चे ऑटिस्टिक बहुत होने लग गए हैं। ये सारा इसी दौरे जदीद का जो तोहफा है उसका वजह है। ऐसे बच्चों को यही कहा जा सकता है कि बड़े शरीफ हैं, हाँ। जमीन तो नजर नहीं चौकी। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक आपस की बात है, ये बताइएगा कि दुनिया भर के मतलब बॉस की झिड़कियाँ, वक्त पे ना आना, टारगेट पूरा ना करना, ये सारे मसाइल जो हैं ये मर्दों को दरपेश होते हैं। घर बैठी औरतों को बैठे बैठे दर्दें शुरू हो जाती हैं, क्या वजह है? देखिए बात यह है कि अगर मर्द परेशान होगा तो औरत तो परेशान होगी ना, सवाल ही नहीं पैदा बंदा बीवी ने जाकर मेरे खब्बे गोडे ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੋਡੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, 2 ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੇਰੇ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਘਰ 'ਚ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਜੂਸ ਵਾਲੀ। ਇਧਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਸ਼ਜਰ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਆਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ 200 ਵਰਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ है। तो डॉक्टर साहब सबसे ज्यादा चीखे निकलवाने वाला दर्द कौन सा होता जब आप अपनी बीवी को बगैर मेकअप के देखते हैं। यह आपसे कोई लिया हुआ उधार जो है वो मार जाए। है? कोई कहता है दाढ़ का दर्द, कोई कहता है आधे सर का दर्द। ये बन रहे हैं मेरे लिए। आपका तजर्बा क्या कहते हैं? देखिए जो दांत का या दाढ़ का दर्द होता है वो हकीकतन बहुत तकलीफ दह होता है। सर दर्द फिर भी बर्दाश्त कर दिया जाता है, लेकिन ये कि जो दांत का दर्द है वो बर्दाश्त से बाहर होता है। और वैसे तो इसको हम भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो दांत का दर्द होता है वो ज़्यादा डेंटिस्ट और मैक्सिलोफेशियल जो होते हैं उनकी फील्ड होती है, वो उसी को मैनेज करते हैं, क्योंकि उनके लिए मैनेज करना वो ईजी होता है। जगह थोड़ी होती है तो वहाँ पे इंजेक्शन पहुँचाना उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। ख़वातीन जो हैं वो आर्थराइटिस या कोई और दर्द होता है तो वो मतलब शोर मचा के घर भी सर पे उठा लेती हैं सारा। लेकिन अगर एस्थेटिक प्रोसीजर्स हो रहे हों उनके साथ तो फिर वो कमाल का दर्द, जितना मर्जी दर्जा इंतहा तक पहुंचाओ, वो बड़े हंस के बर्दाश्त कर लेती हैं। डॉक्टर पूछती भी है कि आपको पेन तो नहीं हो रहा, तो आगे से कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप पेन वाकई में बहुत बड़ा मसला है, तो आप पेन मैनेजमेंट के हवाले से हमारी पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो हर एक से दवाई न लिया करें, ठीक है, सही है। दूसरा हम यूट्यूब के डॉक्टर्स और यूट्यूब की वीडियोस देख के अपने घरों में बहुत से टोटके इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तीसरा ये कि जितने भी सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, सर्टिफाइड पेन स्पेशलिस्ट हैं, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन्हीं के पास जाएं ताकि आपके जो जोड़ हैं, आपकी जो जिस्म में जितनी मुख्तलिफ बीमारियां हैं वो प्रॉपर तरीके से उनका हल निकाला जाए। ये ना हो कि कोई स्टीरॉइड का या कोई नुकसानदेह दवाइयों का इस्तेमाल करके आपको मज़ीद नुकसान पहुंचाया जाए और आपके जिगर और गुर्दे को नुकसान हो इससे। नाज़रीन, यहाँ हम लेते एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। है खुदा इस भरम को सदा रखना कायम, मैं दिया हूँ वो समझता है सितारा मुझको। अब हम चलते हैं उनकी जानिब जो हकीकी मायनों में हमारी महफिल के सितारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल नसीमी की सर से है कि अगर किसी बंदे को जुगत की आमद हो और वो थत्ता हो तो वो क्या करे? अच्छा, जुगत नहीं देखती जुबान कौन सी, जुगत आ जाती है। आप कभी फैसलाबाद जाके देखें, वहाँ पर थत्था जितना भी जुबान नहीं देखते। मेरी बुआ फैसलाबाद की। फिर आप टेस्ट दें हमें कि अगर आपको जुगत आती है तो ये सामने आपके बंदा मटीरियल बैठा है। शज्जे साहब को किसी ने कहा जी सलाद खाया गया ना उससे वजन कम होगा। कहते फिर माजिदी क्यों नहीं होती? ए दूधत नहीं, दूधत तार दूधत ओए दूधत तारो तू तो तारी है नहीं दूधत। शबाज शरीफ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਦੋ ਅੰਡਰ ਪਾਸ ਪਾ ਦੇਣੇ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਕਾਲਜ ਚ ਤੱਤਾ ਹੋ, ਤੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੱਤਾ ਹੀ ਆ ਤੀ नाले सही हो गया कैसा थत्ता है ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਲਜ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਤੇ ਰੋ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ 6 ਦਫਾ ਫੇਲ हुए मैं पाती हूँ मैं पास हो गया आपको उन्होंने कॉलेज नहीं वाला ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿੱਟੀਆਂ ਜੂਤਾਂ ਤੇ ਚੋਰਨਾ ਹੈ जुनेद साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है मुझे इसकी फीकी भी मीठी लगती है यार। जुनेद साहब का बड़प्पन है उन्होंने आपकी तारीफ की अपने माल ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ क्या बात है आई लव यू किसी कला माल का डंगर माल कहते होर अच्छा लगना सी जी तो अब बारी है झलक ब्यूटी क्रीम का ये गिफ्ट हैम्पर उसको मिलेगा जो देगा दुरुस्त जवाब। सुहाना का आज का सवाल है अपने मेहमानों से, घरेलू इस्तेमाल की वो कौन सी चीज है जिसके नाम के आखिरी 2 हरूफ काट दिए जाए तो जिस्म का एक हिस्सा बन जाता है। घर में नॉर्मली इस्तेमाल होने वाली चीज। कांटा। टे और अलिफ निकालेंगे तो कान बचेगा। हाँ, ठीक है, कान बच जाएगा। ठीक है। हमारा सवाल और जवाब कुछ और था लेकिन आपका जवाब दुरुस्त था जी। इनके लिए बहुत सारी तालियां झलक ब्यूटी क्रीम के हमारे आज के विनर। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਸਿਰਫ ਲਿਫਾਫੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ नेक्स्ट तहजीब साहिबा, मेरा नाम डॉक्टर सईदा लीना शराजी है। मुझे मालूम हुआ है कि आप पेन मैनेजमेंट के बारे में जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि रिश्तेदारों की बातों से जो तकलीफ होती है उसका इलाज क्या है? ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। देखिए, इसका तो यही इलाज है कि उनकी बातों पे तवज्जो ना दी जाए, बल्कि रिश्तेदारों पर ही न तवज्जो दी जाए, बातें छोड़े। बस अपना स्टेटस ला के समझाया करो अल्हम्दुलिल्लाह दा। आप पे रिश्तेदार सोच सोच के मर जाने के अल्लाह जाने उन्हें की मिल गया, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लग गया। और वाकई कोई आपके साथ मसला है तो आप लगा दें कोई सैड स्टेटस लगा दें, आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। जुनेद भाई, वो जो आप एक गेम खेलते होते हैं ना, आज वो पीछे जो कपल बैठा हुआ ना, तो मियाँ बीवी लग रहे हैं, तो मजाज आशनाई खेला जाए क्यों ना। अच्छा, तारक अजीज साहब को याद किया तारक अजीज जाए। साहब को याद किया जाए। आपको कैसे पता वो कपल है? वो शौहर के चेहरे पे सारी अलामतें जो है शौहर वाली हैं। घबराए ना, मेरा मतलब है कि आपके चेहरे पे जो रोब दाब है, जो तंत्रा है, और मैंने कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल नहीं घबराते माशाल्लाह, क्योंकि माशाल्लाह आप भी एक शोर हैं और विकी भाई भी शोर हैं माशाल्लाह, तो हम सब एक जैसे ही हैं। आज जितने शौहर बैठे हैं, हमारा एक शौहर टाउन बन सकता है। आपको थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा, आपके साथ एक गेम खेलनी है हमने। अब आपका इम्तिहान लेने लगे। अब मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि भाई साहब, घर में कौन सी चीज शौक से खाते हैं और क्या क्या पकवाते हैं? बिरयानी, बीफ बिरयानी की। तो जब वो कहते हैं बीफ बिरयानी बनाओ, तो आप पहले कहते हैं कि पहले मोबाइल चेक कराओ? उनका पासवर्ड मुझे पता है। मोबाइल नहीं चेक करती उनका? नहीं। पासवर्ड भी 2-2 रखे होते हैं आज। व्हाट्सएप भी 2-2 बने होते हैं आजकल। एक बिजनेस का होता है, लेकिन वो बिजनेस का होता नहीं है। जिसको आप कह रहे हो बिजनेस का नहीं होता, वो ही बिजनेस का होता है। वही बिजनेस का होता है। जब आपको नाराजगी हो जाती है कभी कभार, खुदा ना खासा हो ही जाती है मियाँ बीवी में, पहले सॉरी कौन करता है? वही। अच्छा, सॉरी कैसे करते हैं? कानों को हाथ लगाते हैं, बैठ के उठक बैठक लगा, क्या करते हैं? सच सच बताइएगा। बस मेरे लिए कुछ ले आते हैं। अच्छा, वाह जी वाह। यही फिर सॉरी एक्सेप्टेंस होती है। ऐसी खवातीन है जो हमारे घरों में फसाद करवाती हैं। नहीं, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है। अच्छा, कभी इसका उलट भी करके देख लेना, बीवियां भी कभी ये काम करके देख लें, उससे प्यार मोहब्बत 4 गुना बढ़ता है। जी बिल्कुल। कोई ना माशाल्लाह, किड्डा बेटे तो सॉरी करते, किड्डे अजीब जी लगते हैं। कभी बर्तन धुलवाए, किचन में हेल्प करते हैं आपकी? जब मेरी थोड़ी तबीयत अप एंड डाउन कुछ चल रहा हो तो करते हैं। हाँ जी, Very हेल्प good. करवाते हैं मेरी। चलो, बर्तन तो वो धोते हैं, कपड़े भी वही धोते हैं। मशीन धोती है। मशीन का नाम लेकर उन्होंने शौहर बचा लिया। और आपको पता है मशीन धोती है, इनके घर में नसीम धोती है। मेरा ख्याल है काफी बुलाए। कि अगर दुनिया में शौहरों का ओलंपिक हो तो आप बिला मुकाबला पाकिस्तान के लिए सोने के 1 नहीं 100 तमगे जीत के लाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। अरे
ताबेदारी फर्मा बरदारी अपनी इंतहा पे है जो उन्होंने हमारी भाभी ने जवाब दिया आपके बारे में। तो चलिए अब आप पूछ लेते हैं कि कितना सच है कितना झूठ है। जी खाने में आपको क्या पसंद है जो आप कहते हैं जी ये बनाएं? बीफ बिरयानी। अच्छा, भाभी कह रही हैं कि वो आपके मोबाइल पे बहुत नजर रखती हैं, इसकी क्या वजह है? इतना ही कहने काफी है क्योंकि मेरा मोबाइल का लॉक ओपन है। मेरे मोबाइल चाहे तो बच्चे नहीं, वो देखें। कह रही हैं कि आपके मोबाइल पे 2-2 पासवर्ड लगे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक ही पासवर्ड लगा हुआ एक है? ही पासवर्ड चेक कर ले, मेरे पास है। नहीं, मुझे ना चेक कराएं, जिन्होंने चेक करना है उनको चेक कराएं। मैं ये ले अच्छा, अभी हमने भाभी से पूछा था कि घर में लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन है? भाभी कहती मैं मनाती हूँ, और कौन मनाता है? आज तक ऐसे हुआ है कि कभी किसी भी औरत ने मनाया हो? हमेशा हमेशा मैं ही मनाता हूं। अच्छा, जब आप बनाते हो तो उसका तरीका कार क्या होता है? ये कहानी घर घर की आपको पता है, मुझे भी पता है क्या होता है फिर। नहीं तो आप- बताएं ना, यही तो पूछना है और अपने व्यूअर्स को भी बताना है। कभी कभार इनके लिए कोई चॉकलेट को आइसक्रीम वगैरह या ऐसा कुछ ना कुछ फिर वो ला के तो परेशान करना पड़ता है। आप मुरीख पे तो नहीं रहते? नहीं, जाने का इरादा है, इसके बाद वही स्टेप है सर इंशाल्लाह। ये मुरीख पे नहीं, ये सिर्फ मुरीद पे रहते हैं। आज घर घर में लड़ाई होगी। कपड़े कौन धोता है? ऑटोमेटिक मशीन होती है, किचन में हेल्प करवाते हैं? करवाते हैं। करवाते हैं। बर्तन धुलवाते हैं मतलब? आज भी धो के आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा, सारे काम कर देने असल च ना सादे शौहर नहीं, एक करण शौहर ने। चलें जी, बहुत सारी तालियां, बड़ी जबरदस्त कपल है ये तो, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप दोनों की खुशियां इसी तरह बरकरार रखे, आपका साया अपने बच्चों के सर पे बरकरार रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रखे, और आप दोनों की जो जिंदगी है उसका साया पाकिस्तान के तमाम घरों में पड़े, तमाम शौहर ऐसे हो जाएं इंशाल्लाह। जी, तो अब बारी है जेलेक ब्यूटी क्रीम के सेकंड गिफ्ट हैम्पर की, यानी हमारी यस। तो इसके लिए हमें 2 पार्टिसिपेंट चाहिए। कौन कौन हिस्सा लेगा? ये जो आपके सामने पड़े हुए ना ये नंबर, मैं जो नंबर अनाउंस करूंगा ना, आपने वही नंबर उठाना है। जो पहले उठा लेगी वो अपना विनर होगी, और जो ज्यादा उठा लेगी वो इनाम की हकदार होगी। ठीक है? अगर आपसे मतलूबा नंबर ना उठाया जाए तो गुस्से में सर नंबर ही पकड़ना है, एक दूसरे के बाल नहीं पकड़ना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 9। वेल डन। 1 2 3 45। 82। 82 है ही नहीं। तो सही। 13। बाजी आप सिर्फ देखने आई हो? आप देखने आई हैं कि ये जीतती कैसे है? नंबर 12। हाथों के नंबर 92। अच्छा, कितनी शरीफ है, इधर देखे कितनी नहीं है नहीं नहीं, मेरा ख्याल वो इसके लिए उठा रहे है, ये तो किसी का है। 18। ओहो, जीत गई। कसम तोड़ दी। 22। 19। 71। नंबर 0। नंबर 00। 10। ले लिया 87। 95। 70। नंबर 8। तो वो अब मुकाबला बराबर आ गया है। 62। गुड, वेरी 31। गुड। बहुत अच्छे। 83। 70। 79। 21। 67। 67 के बाद सिर्फ 7। 14।
75, 63, 15, 20 पहले उठा लिया। ये मेरा ख्याल है बराबर है। ऐसी पता कि बड़ा छोटा कर लेंगे। जीत गई। चलिए जी इनाम दे दीजिए। झलक ब्यूटी क्रीम की हमारी आज की विनर है इर्जा। इनके लिए बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, ताहिर मेहदी साहब हमारे शो में पहले भी एक बार गा चुके हैं और नाजरीन ने बड़ा पसंद किया, बड़ा ज़बरदस्त हमें फीडबैक मिला था और आज नाजरीन की फरमाइश पे एक बार फिर हमने उन्हें अपने शो में दावत दी है। आइए आपको एक खूबसूरत नगमा सुनाते हैं जी। मेरियां गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। स्याल समय दियां कालियां रातां याद करेंगी, बीतियां बातां अखियां लाउणगियां बरसातां, फिर मैं तैनू याद आवांगा, याद आवांगा। शिकर दोपहर बैठ के कल्ली देवेंगी जद दिल नू तसल्ली, लोकी कहणगे चली चली, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा, याद आवांगा, याद आवांगा। नाज़रीन, ये था आज का देश के चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि इंसान उम्मीदों से बंधा ऐसा ज़िद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से होता है और ज़िंदा भी उम्मीदों पे ही रहता है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।